Subscribe my channel and press bell icon to get all notification. Hello students, today we'll discuss the next topic of our chapter molecular basis of inheritance. इसमें अब तक हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, डबल हेलिकल मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट हाउ दिस डीएनए गेट पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस or how the packaging of the DNA happens. So it's very interesting topic. Let's start our topic packaging of DNA molecule. इस टॉपिक के अंदर हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे न्यूक्लियोसोम की. सो हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर? वी विल डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम. व्हाट एग्जैक्टली द न्यूक्लियोसोम. अब बात करते हैं कि न्यूक्लियोसोम है क्या. एक्चुअली द वन साइंटिस्ट whose name was Woodcock or Woodcock, we can call it Woodcock, in 1979. This scientist, this Woodcock, इन scientist ने क्या बताया that chromatin consists of some repeating pattern और repeating bodies of pattern जो होता है वो present होता है chromatin के अंदर. तो ये जो repeating pattern में जो bodies present थी, these bodies are known as nucleosome. The term nucleosome was given by the another scientist named Audit. Audit जो थे, he gave the term nucleosome. वुडकॉक ने तो जस्ट बताया था कि क्रोमेटिन के अंदर कुछ रिपीटिंग बॉडीज प्रेजेंट होती हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न के अंदर, यानी कि एक रिपीटिंग बॉडी है, अगेन इट इज प्रेजेंट इन द रिपीटिंग मैनर. तो कंटिन्यूसली एक रिपीटिंग पैटर्न के अंदर कुछ बॉडीज प्रेजेंट है. बट ऑडिट ने उन बॉडीज को जो नेम दिया, जो टर्म दी, दैट टर्म गिवन बाय द ऑडिट. तो ही गेव द टर्म न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम टर्म गिवन बाय द ऑडिट. Now, what's exactly the nucleosome is? Nucleosome है क्या? Nucleosome is a structure in which we can say that two important components are present. That one thing is the DNA. One is DNA and it's binded with the histone protein. This composition or this combination of these two is known as nucleosome. And the histone which is present here, it is present in the form of octamer. ये octamer की फॉर्म में प्रेजेंट होता है. octamer means 8. वर्ड octa आपको पता है, octa वर्ड का मतलब है 8. तो 8 histone proteins are present here. That's why this is known as histone octamer. तो histone octamer साथ में DNA, that complete combination is known as nucleosome. And this nucleosomes gives the beads on string structure. Beads on string structure का क्या मतलब है कि ऐसा एक अपीयरेंस मिलता है कि जैसे ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज द स्ट्रिंग ऑफ द डीएनए एंड इन ऑन दिस स्ट्रिंग दिस काइंड ऑफ बीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. इस तरीके से बीड्स लाइक स्ट्रक्चर होती हैं एंड दिस बीड स्ट्रक्चर इज नॉन एज न्यूक्लियोसोम. इन्हीं को ही हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं. सो दे आर शोइंग बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर. तो इस तरीके की अपीयरेंस शो होती है इनकी प्रेजेंस की वजह से. अब हम बात करते हैं इन न्यूक्लियोसोम की डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में, दैट व्हाट इज प्रेजेंट देयर. लाइक वी सेड दैट द हिस्टोन प्रोटीन इज प्रेजेंट देयर. These histone proteins are the positively charged protein. These are the positively charged protein. So let's start this about the nucleosome. Histone which are present here, these are the positive charged protein होते हैं. Positive charge है, DNA is our negative charge. हमारा DNA जो है वो negative charge है. तो positive charged protein they have high affinity of binding with the DNA molecule because they are positively charged. DNA is negatively charged, so the protein can easily bind with the DNA with a high affinity. So these positively charged proteins are found, and these are the histones. These histones consist of some specific amino acids. ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये कुछ स्पेसिफिक बेसिक अमाइनो एसिड से बना है और जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इसको ध्यान से सुनिएगा. द अमाइनो एसिड्स व्हिच आर present in the histone, these amino acids are lysine and arginine or arginine. It also we can call it arginine or arginine. These two basic amino acids they form the histone protein. That is very important question according to NEET exam also. बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से अमाइनो एसिड्स हैं जो हिस्टोन की फॉर्मेशन
तुम्हें रिक्वायर्ड है या हिस्टोन फॉर्म कर रहे हैं, सो वी कैन से दैट हिस्टोन इज फॉर्म फ्रॉम दीज टू बेसिक अमाइनो एसिड्स, lysine and arginine. They are basic amino acid and they are giving the positive charge to the histone protein, and DNA is as a negatively charged protein. The negative charge है, protein is negative charge है, so it has high affinity to bind with this histone protein. तो आसानी से histone protein और DNA आपस में bind हो जाते हैं. Now these are the two amino acids which are making the histone protein. The histone proteins which are present in the binding or packaging of DNA molecules, they are 8 in number, and that's why it is known as octamer. इसे हम इसीलिए octamer कह रहे हैं. But if we talk about the types of histone proteins which are involved here, कितने टाइप के हिस्टोन प्रोटीन इन्वॉल्व है, then we can say that here the 5 types of histone proteins are present. 5 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन हैं. कौन कौन से हैं? First H1, second one is H2A, H3B, H3 and then H4. These are the 5 types of the histone. H1, H2A, H2B, sorry here H2B, H2B, H3 and H4. These are the 5 types of the histone proteins which are involved in the packaging of the DNA or in the formation of nucleosome. ये चीज हम 5 बोल सकते हैं, but in actually जो प्रोटीन octamer formation में involved है, these 4 proteins, these 4 histone proteins are involved in the formation of octamer. तो octamer जो बना है वो इन 4 histone protein से बनता है, H2A, H2B, H3 and H4. All of these 4 types of histones are present in a double form, यानी कि 2 molecules की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. तो 4 तरीके के हिस्टोन प्रोटीन हो गए हैं, H2A, H2B, H3 and H4. 4 types है, and each type of histone is present in a double form में प्रेजेंट है. So that's why we are calling it octamer. तो octamer जो फॉर्म हो रहा है वो इन 4 तरीके के प्रोटीन से ही फॉर्म हो रहा है, इन 4 टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन से फॉर्म हो रहा है. जो 5th टाइप का हिस्टोन हमने लिखा है दैट H1, it is not making the part of the nucleosome, whereas it work as a clamp. ये एक तरीके से क्लैम्प का काम करता है जो कि इन हिस्टोन्स को या इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर को बाइंड करके रखेगा. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियोसोम. स्ट्रक्चर देखते हैं तभी हम आसानी से समझ पाएंगे कि कैसे ये बाइंडिंग हो पा रही है, कैसे डीएनए बाइंड है इन हिस्टोन ऑक्टामर के साथ. तो अब तक हमने जो देखा एक बार उसे रिकैप करते हैं. द वुडकॉक इट्स शोज, वुडकॉक ने सबसे पहले बताया दैट क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ सम बॉडीज इन अ रिपीटिंग पैटर्न, एंड दीज बॉडीज, नेम ऑफ दीज बॉडीज वर गिवन बाय द ऑडिट एज अ न्यूक्लियोसोम, एंड न्यूक्लियोसोम इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन ऑक्टामर. दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम में जो हिस्टोन प्रोटीन है, these are the positively charged protein which are made up of 2 basic amino acid mainly. सबसे ज्यादा अमाउंट में है that is the lysine and arginine. इनके कॉम्बिनेशन से बना है, and here the octamer is present which is made up of 4 types of histone proteins which are present in double number में present है, and H1 is making as the clamping protein. So let's draw the structure of nucleosome. Let's see how the histone proteins are arranged. So this is the first histone protein, that another one H2A, this is H2B. Just behind the H2A, the second molecule of this H2A will be present. तो इसके just पीछे जो होगा second H2A होगा, and in on behind to H2B, the second molecule of H2B also present. तो ये हो गए यहाँ पे, then H3 is there, and then this would be the H4, H3 and H4, and in on behind of this the H3 is also the second molecule of H3, and here also the second molecule of H4 is present behind this H3 and H4. So it's make a ball like structure. एक तरीके से एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जब ये सारे हिस्टोन प्रोटीन से एक दूसरे के साथ अरेंज हो जाएंगे, then they form a ball like structure. So ये जो बॉल बन रही है that is a octamer because 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अरेंज है, and with this histone octamer जो DNA bind हो रहा है. Now let's see how this DNA will bind. DNA will get wrapped around this histone octamer.
डीएनए जो है इस हिस्टोन ऑक्टामर की चारों तरफ रैप होगा। ये रैपिंग किस तरीके से होती है? इट विल रैप इन सच अ वे दैट दिस इज वन टर्न and it will take a one more turn and then this, in this way this is DNA will wrap around this histone octamer। तो एक ये सिंपल में भी डायग्राम बनाया है ताकि आप इसे आसानी से समझ सके, बट अगर हम एक बॉल की फॉर्म में रैपिंग देखते हैं तो हम यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस इज वन हियर वी आर मेकिंग दिस वन टर्न एंड दिस विल मेक अ टर्न अगेन, एक और टर्न यहाँ पे बन रहा है एंड इट इज कमिंग आउट, यहाँ से भी ये बाहर आ रहा है एंड इट इज कमिंग आउट फ्रॉम हियर ऑल्सो एंड देन इट गेट्स जॉइंड विद दिस one more histone, that is the H1. So you can draw the diagram in this way also. This type of diagram is given in your NCERT book, but in simple way you can draw in this way also. Now let's see what is happening here. This is histone octamer and around this histone octamer the DNA is wrapped. यहाँ पे जो DNA की wrapping हो रही है almost 200 base pair, 200 base pair DNA जो है वो wrap हो जाता है around this histone octamer. Is 200 base pair DNA is wrapped around this histone octamer. Out of this 200, this part, this core DNA, ये जो basically this core DNA है जो कि histone octamer के चारों तरफ wrap हुआ है, it is 146 base pair. ये होता है 146 बेस पेयर का। Whereas ये जो आपको डीएनए दिखाई दे रहा है जो ऑक्टामर के चारों तरफ नहीं रैप हुआ है, बट इट वर्क एज ए लिंकर डीएनए, ये एक तरीके से लिंकर डीएनए का काम कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है एंड हियर आल्सो द अनदर न्यूक्लियोसोम विल बी प्रेजेंट देयर, एक और न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा एंड दिस डीएनए इट वर्क एज अ लिंकर डीएनए व्हिच कनेक्ट्स टू न्यूक्लियोसोम विद ईच अदर। सो दिस इज द लिंकर डीएनए, लिंकर डीएनए, और वी कैन कॉल इट इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए। एक और नाम अगर आप इसका कहना चाहें तो इट कुड बी इंटरन्यूक्लियोसोमल डीएनए। दिस लिंकर डीएनए हैज 60 बेस पेयर, ये 60 बेस पेयर का होगा एंड the core DNA is 146 base pair. Overall we can say that 200 base pairs of DNA is wrapped around or arranged around this histone octamer. And this H1 protein, this H1 histone protein is work as a clamp. अब clamp की क्या जरूरत है? Suppose you have a ball, आपके पास एक बॉल है और उस बॉल को आप एक स्ट्रिंग से, एक रिबन से टाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो आपको चाहिए ना जो उसको फिक्स करके रखे। एक राउंड बॉल के चारों तरफ अगर आप रैपिंग कर रहे हैं तो वो उसके खुलने की चांसेस रहेंगे। सो टू मेक दिस बाइंडिंग परफेक्टली, बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो पाए, दैट्स व्हाई दिस H1 हिस्टोन इज आल्सो रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं H1 जो प्रोटीन है, H1 जो हिस्टोन प्रोटीन है, इट गेट रैप अराउंड दिस बाइंडिंग और दिस डीएनए सो दैट इट कैन रिमेन बाइंड परफेक्टली। तो यहाँ पे जो दिखा रखा है दैट इज द H1 प्रोटीन, दिस इज H1 प्रोटीन, ये हिस्टोन कोर बोल सकते हैं, दिस इज द हिस्टोन प्रोटीन एंड दिस इज द डीएनए हेलिक्स व्हिच इज रैप्ड अराउंड this histone. So this is the diagram given in your NCERT book, and this is the role of H1 we already discussed, it makes the binding perfectly. Now let's come back onto this diagram. This histone octamer and DNA is helix is wrapped around it, 200 base pair DNA wrap हो गया है, 60 base pair linker DNA की तरह काम कर रहा है, whereas the 146 base pair wrap around this nucleosome or wrap around this histone octamer. ओके नाउ दिस, ये जो रैप, हम रैपिंग की बात कर रहे हैं, दिस ये जो रैपिंग हो रही है डीएनए के हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ, इट विल टेक टर्न्स। ये कितना टर्न लेता है हम इसके बारे में अगर बात करें, इट विल टेक 1 by 1 to 1 and 3/4 टर्न, 1 and 3/4 टर्न ले रहा है, और वी कैन से दैट इट इज टेकिंग 1.75 टर्न। नाउ व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सपोज एक बॉल है या कोई चीज है जिसके चारों तरफ आप रैपिंग कर रहे हैं, तो एक यहाँ से आपने स्टार्ट किया रैप करना, यू हैव कंप्लीटेड 1 टर्न, एक टर्न कंप्लीट हो गया, देन यू विल रैप अगेन, यहाँ तक आप हाफ तक पहुंचे हैं एंड देन मोर देन हाफ,
थोड़ा हाफ से ज्यादा जब आप रैप कर रहे हैं, देन वी कैन कॉल इट 3/4 पार्ट्स, 3/4 पार्ट तक रैपिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी जो रैपिंग हो रही है डीएनए हेलिक्स की अराउंड दिस हिस्टोन ऑक्टामर इज 1 2 1 completed and then next turn is 3/4 part. So we can say that it's wrapped around 1.4 turns, 1.75 turn में wrapping कर रहा है। So this is about this nucleosome. This octamer structure, ये जो है हिस्टोन ऑक्टामर है, 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। This type of structure is also known as antibody. Antibody भी हम बोल सकते हैं, और VA. These are the another terms which we can use for this structure also, this nucleosome. Now, अब ये सब चीजें हमने जो पढ़ी है, इसका पैकेजिंग से अब क्या रोल है, कैसे हम कह सकते हैं कि डीएनए इस तरीके से पैक हो रहा है। You know that the length of the DNA in a mammalian cell is 2.2 मीटर। डीएनए की जो लेंथ है मेमेलियन सेल के अंदर वो 2.2 मीटर होती है। Now, how this length is calculated? ये लेंथ कैसे कैलकुलेट की? We know that means in a cell, in a mammalian cell, the base pairs that of the DNA that is present is 6.6 into 10 to the power 9 base pair. 6.6 into 10 to the power 9 base pair DNA present होता है। This is the base number of base pairs of the DNA which is present in a single mammalian cell. If we multiply this number of base pair with the distance between two base pairs, दो बेस पेयर्स के बीच में जितना डिस्टेंस होता है, अगर हम उससे मल्टीप्लाई करें, दैट इज द 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, और यू कैन मेक अनदर यूनिट आल्सो, दैट इज 3.34 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -9 मीटर पर बेस पेयर। यू कैन यूज दिस यूनिट आल्सो। 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, देन वी गेट दिस वैल्यू, दैट इज द 2.2 meter. So we can get the length of the DNA molecule which is 2.2 meter. Now this 2.2 meter length of DNA is such a big length, इतना बड़ा साइज का DNA एक सेल के अंदर, सेल, you know that cell is a very small structure, it's a microscopic structure, साइज बहुत छोटा है सेल का, सेल ही माइक्रोस्कोपिक है, और उसके अंदर भी न्यूक्लियस जिसका साइज तो सेल से भी छोटा होगा, इतने छोटे न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए कैसे पैक्ड होता है, इस चीज को अब हम न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर से समझ सकते हैं। न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि कैसे डीएनए जो रैप कर रहा है, एक बीड्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है स्ट्रिंग के ऊपर। इस तरीके से जब डीएनए की पैकेजिंग होती है, देन इट कैन बी रैप इजीली पैक्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। सबसे पहले ऐसी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, न्यूक्लियोसोम इस तरीके से अरेंज होंगे कि ये बीड्स की फॉर्म में, कि डीएनए का कुछ पार्ट जो है वो न्यूक्लियोसोम पे अरेंज हो गया है, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ रैप हो गया है, इस तरीके की स्ट्रक्चर बन गई है। नाउ दीज स्ट्रक्चर्स, दीज क्रोमेटिन्स आर पैक्ड इन ए सुपर कॉइल्ड फॉर्म। ये कॉइल्ड हो जाते हैं, कॉइल्ड का मतलब है कि इन्हीं के ऊपर लपेटा गया है, एक कॉइलिंग हो रही है, देन दे आर कॉइल्ड अगेन, देन दे आर कॉइल्ड अगेन, दिस इज नॉन एज सुपर कॉइल्ड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन रही है, जब इस सुपर कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, then they make the chromosomes and these chromosomes are found into the nucleus. यही chromosomes nucleus के अंदर present है। In the normal non-dividing cells, interphase stage में chromatin fibers की form में arrange है, but when in the cell present in the dividing state, in a metaphase stage, we can find these condensed chromatin fibers in the form of chromosomes। ये हमें chromosome की form में वहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कैसे इतने लार्ज साइज का डीएनए एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर सुपर कॉइल्ड फॉर्म के अंदर, पहले न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में, एंड देन दीज न्यूक्लियोसोमल स्ट्रक्चर गेट सुपर कॉइल्ड एंड दे अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ स्मॉल न्यूक्लियस। So here we discussed that how the chromatin fiber are packed with the histone protein, but at higher level some additional set of proteins are also required. जब लेवल हाई लेवल पे कुछ एडिशनल प्रोटीन भी चाहिए होते हैं other than the histone protein for the packaging of chromatin fibers, and these proteins are known as non-histone chromosomal protein। यानी हम बोल रहे हैं non-histone chromosomal proteins। In the nucleus, that some part of
क्रोमेटीन्स जो होता है वो इस तरीके से अरेंज होता है, टू डिफरेंट वे में अरेंज होता है. हम कह सकते हैं इन द न्यूक्लियस द क्रोमेटीन्स आर अरेंज्ड इन टू डिफरेंट वेज, दैट सम पार्ट ऑफ द क्रोमेटीन्स आर लूजली पैक्ड एंड सम पार्ट ऑफ द क्रोमेटीन्स आर द डेंसली पैक्ड, बहुत कंडेंस्ड पैक्ड होता है. जो लूजली पैक्ड पार्ट होता है दैट पार्ट इज नोन एज यूक्रोमेटीन. सो दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रोमेटीन ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेनिंग प्रॉपर्टीज. जो क्रोमेटीन है वो दो तरीके से पैक्ड हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर, और ये चीज आइडेंटिफाई की जाती है. इसके लिए क्रोमेटीन को स्टेन किया है, स्टेन करने के बाद किस तरीके से कलर विजुअलाइज हो रहे हैं उनके बेसिस पे यहाँ पे नेम दिया जाता है. द फर्स्ट इज यूक्रोमेटीन एंड अनदर वन इज हेटेरोक्रोमेटीन. यूक्रोमेटीन एंड हेटेरोक्रोमेटीन, दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ द क्रोमेटीन. यूक्रोमेटीन जो होता है दिस पार्ट इज द लूजली पैक्ड पार्ट. ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड एंड इट स्टेन्स लाइट. जब स्टेनिंग करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो बहुत लाइट स्टेन होता है. whereas this heterochromatin it's a densely packed part. ये बहुत डेंस पैक्ड होगा, डेंसली पैक्ड होगा एंड इट स्टेन्स डार्क. जब स्टेनिंग करेंगे तो ये डार्क कलर को अक्वायर करेगा. इट स्टेन्स डार्क. एंड दिस यूक्रोमेटीन इज नॉन एज ट्रू क्रोमेटीन. ट्रू क्रोमोसोम्स जो है वो इसी क्रोमेटीन पार्ट से ही बने हैं. अगर हम इनके थोड़े बहुत और डिफरेंसेस के बारे में बात करें ताकि हम इन्हें और आसानी से समझ पाएं, तो ये जो यूक्रोमेटीन पार्ट होता है ना क्रोमेटीन्स का, दिस क्रोमेटीन पार्ट इज द ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट. ट्रांसक्रिप्शन जो होता है इट्स अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव. ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का क्या मतलब है कि ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा. Transcription is the process in which the DNA is making the mRNA or DNA is making the RNA. And we know that DNA first DNA forms the DNA. DNA खुद की एक कॉपी बनाता है. This process is known as replication. And then after replication, DNA forms the mRNA. It gives its information to the mRNA. And this process is known as transcription. The process of formation of RNA from the DNA is known as transcription. So this euchromatin part is the part which is transcriptionally active. ये transcriptionally active part होता है, ये RNA formation का काम करेगा. whereas the heterochromatin जो होता है ये या तो करता ही नहीं है, transcriptionally inactive होगा, inactive होता है, और it would be the less active या फिर बहुत less active होगा. एंड रेप्लिकेशन की अगर बात करें, जैसे हमने यहाँ पे रेप्लिकेशन भी देखा है, दिस यूक्रोमेटीन पार्ट इज अर्ली रेप्लिकेटिंग पार्ट. ये जल्दी रेप्लिकेट होता है. इट्स अर्ली रेप्लिकेटिंग पार्ट. अर्ली रेप्लिकेटिंग मीन्स जब सेल्स पहुंच रही हैं सेल डिवीजन की एस फेज के अंदर, उस एस फेज में ये पार्ट रेप्लिकेट हो जाता है. whereas the heterochromatin this part is late replicating. ये लेट रेप्लिकेट होगा, या तो ये एस फेज के एंड में रेप्लिकेट होता है और इट रेप्लिकेट आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ यूक्रोमेटीन. सो these are the two types of the chromatin on the basis of some method जो नाम दिया गया है, the identification किया गया, that is done on the basis of staining property. And we discuss some important differences between these two types of chromatin parts, euchromatin and heterochromatin. So in this way we studied that how the DNA, the large size DNA is packed into a small size nucleus. I hope you will be able to understand this topic. In the next video, we will discuss that how it is find out that DNA is a genetic material. So keep watching, keep studying and keep learning. Thank you.